عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس آن لائن ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت علم معاشیات کا دوسرا چیپٹر جو ہمارا جاری ہے، یوٹیلیٹی انالیسس یعنی تجزیہ افادہ جسے کہتے ہیں، تجزیہ افادہ کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ سابقہ ویڈیوز کے اندر ہم نے بہت سارے نکات کا مطالعہ کیا ہے، آج ہم اس ویڈیو کے اندر اس گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کے پر تنقیدیں یا اس کو دوسرے الفاظ میں اعتراضات کہتے ہیں، تو اعتراضات کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ نے پڑھا، گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون جو ہے ایک معاشی قانون ہے، اور یہ معاشی قانون ہونے کی وجہ سے یہ قانون جو ہے شرطیہ ہے، یعنی کچھ شرائط موجود ہیں، کچھ شرائط رکھی گئی ہیں اس قانون کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور ان شرائط کی موجودگی میں یہ قانون جو ہے صحیح ثابت ہوتا ہے، ورنہ یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے مفروضات میں، جیسا کہ شے کی تمام اکائیوں میں یکسانیت ہونی چاہیے، شے کی تمام اکائیوں کے استعمال میں تسلسل ہونا چاہیے، درمیانی وقفہ یکساں ہونا چاہیے، معیاریت ہونی چاہیے، صارف کی معقولیت کا ہونا ضروری ہے، یہ تمام مفروضات رکھے گئے ہیں جو ہم سابقہ ویڈیو کے اندر تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کے اعتراضات کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون جو ہے بیشتر چیزوں پر یہ صحیح ثابت ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے کہنا چاہیے عالمی سطح پر یہ قابل قبول ہے، عالمی سطح پر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کے بہت ساری تنقیدیں، بہت سارے اعتراضات موجود ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا ہم لیں گے غیر حقیقی مفروضات، یعنی ان ریئلسٹک جس کو کہا جائے گا، assumptions جس کو کہا جائے گا، تو غیر حقیقی مفروضات کیا ہے؟ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے مفروضات جو ہے غیر حقیقی ہیں، یعنی حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، حقیقی طور پر ایسا نہیں ہوتا، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر، جیسا کہ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کا قانون جو ہے یہ فرض کرتا ہے کہ شے کی تمام اکائیاں یکساں ہوں، یعنی شے کی تمام اکائیاں ہم جنس ہو، ان کا رنگ، سائز، ساخت، اس کے علاوہ ان کا معیار ایک ہو، ان کا وزن ایک ہو، ان کا وزن کے علاوہ اور جو بہت سا اس کا استعمال ایک ہو، افادیت ایک ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کی جتنے بھی مفروضات ہیں، یہ مفروضات کیا ہیں؟ غیر حقیقی ہیں، ایکچول میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک صارف جو سیب کی اگر اکائیاں استعمال کر رہا ہے، تو سیب کی تمام اکائیاں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان میں کچھ فرق، کچھ چھوٹی ہوں گی، کچھ بڑی ہوں گی، کچھ جسامت کے لحاظ سے، اور کچھ وزن کے لحاظ سے کم ہوگی، کچھ وزن کے لحاظ سے زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ معیار میں بھی فرق پڑتا ہے، کسی کا ذائقہ بہتر ہوگا، کسی کا ذائقہ بد مزہ ہوگا، کسی کا ذائقہ ٹھیک ہوگا، تو معیار میں بھی فرق پڑے گا۔ اسی طرح سے صارف کی معقولیت، صارف جو ہے انسان ہوتا ہے، انسان کا سلوک اور برتاؤ جو ہے تبدیل ہوتے رہتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے اندر جتنے بھی مفروضات رکھے ہیں، وہ تمام کے تمام مفروضات جو ہے غیر حقیقی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تسلسل، ایک صارف جب شے کو استعمال کرتا ہے تو اس میں تسلسل ہونا چاہیے۔ صارف کبھی جب بھوک تیز لگی ہوتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صارف کو جب شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، شدت کی بھوک لگی ہوتی ہے، تو وہ تیزی سے اکائیوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی شدت کم ہوتے جاتی ہے تو اس کے درمیانی وقفہ تبدیل ہوتے جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ تسلسل، درمیانی وقفہ، اس کے علاوہ شے کی تمام اکائیوں کا معیار، یکسانیت، ہم جنسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں بیک وقت یہ تمام مفروضات کا موجود ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کے جتنے بھی مفروضات ہیں، وہ تمام کے تمام مفروضات
मफरूजात जो है गैर हकीकी हैं। तो सिंपली हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं, घटते हुए आशय अफादे के जो मफरूजात हैं वो गैर हकीकी है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन घटते हुए आशय अफादे में ये फ़र्ज़ किया गया है, जबकि एक्चुअल में दरअसल और हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे एक मिसाल के तौर पर यकसानियत, हमजिनसी, तसलसल, दरमियानी वक्फा, माकूलियत, सारिफ का समझदार होना या सारिफ का ज़हीन होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें बैक वक्त, ये तमाम चीज़ें मुमकिन नहीं है। इसलिए घटते हुए आशय अफादे के जितने भी मफरूजात हैं वो तमाम के तमाम मफरूजात जो है गैर हकीकी हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अजीज तुलबा व तालिबात, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? बुनियादी पैमाइश। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, खुसूसियात में हमने इसका मुतालिया किया है कि घटते हुए आशय अफादा जो है, आशय अफादा मार्जिनल यूटिलिटी या अफादा यूटिलिटी जो है एक क्या है? एक एहसासी इस्तिलाह, एक बातनी इस्तिलाह है। एक एहसासी इस्तिलाह, इसको ये बातनी इस्तिलाह इसलिए कहा जाता है, एहसासी इस्तिलाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सालिक जब शय की इकाइयाँ जैसे जैसे इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका आशय अफादा जो है, आशय अफादा वो हासिल करता है, यानी अफादा हासिल करता है, अफादा वैसे वैसे वो हासिल करता है और उसकी अफादियत जो है वो अफादियत को महसूस करता है। लेकिन सालिक जब शय को इस्तेमाल करता है और आशय अफादा हासिल करता है तो वो दिखाई नहीं देता। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अफादा एक बातनी इस्तिलाह है, अफादा एक एहसासी इस्तिलाह। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सालिक जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका आशय अफादा जो है बतदरीज घटता है और इस्तेमाल करने वाला सालिक उसे महसूस करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको शिद्दत की भूख लगी हुई है, आप रोटी की चंद इकाइयाँ लेकर आप खाना शुरू करते हैं। पहली इकाई से आपको पहली चपाती से आपको ज़्यादा अफादा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल पहली चपाती से आपको 6 अफादा मिलता है, दूसरी इकाई से आपका आशय अफादा जो है 4 हो जाता है, तीसरी इकाई पर 2 हो जाता है, चौथी इकाई पर 0 हो जाता है। यानी चौथी इकाई पर आपका आशय अफादा 0 होने से मुराद यहाँ पर ये कि आप खाते खाते एक वक्त आता है कि आप मज़ीद खाने से इनकार कर देते हो, यानी आपकी ख्वाहिश की तकमील हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक के बाद एक चपाती इस्तेमाल करते जा रहे हैं और आपकी भूख नहीं मिट रही है, क्योंकि कहने का मतलब ये कि सालिक जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है उसका आशय अफादा जो है बतदरीज घटते जाता है। घटते घटते एक मकाम आता है कि उसका आशय अफादा 0 हो जाता है। 0 के बाद मज़ीद खाने से इनकार कर देता है। अगर 0 के बाद मज़ीद चपाती की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है सालिक, तो क्या होता है? सालिक को वो अफादा नहीं देता, तो इसकी बुनियाद पर अफादा जो है निगेटिव हो जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, बुनियादी पैमाइश जैसे यहाँ पर रखा गया है, बुनियादी पैमाइश अफादा जैसे एक एहसासी इस्तिलाह है, अफादा जो है एक बातनी इस्तिलाह है। अफादे का ताल्लुक, अफादा दिखाई नहीं देता, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अफादा हमें दिखाई नहीं देता बल्कि सालिक महसूस करता है। लेकिन इस कानून की वजाहत के लिए डॉक्टर मार्शल ने फर्ज किया है कि अफादे की पैमाइश की जा सकती है। अफादे की आदाद व शुमार में पैमाइश नहीं की जा सकती, अफादे की आदाद व शुमार में पैमाइश नहीं की जा सकती, क्योंकि अफादा जो है एहसासी इस्तिलाह है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को दर्द पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचता है, कोई बहुत ज़्यादा गमगीन है, तो हम यूँ नहीं बयान करते कि वो 10 गमगीन है, उसको 20 दर्द हो रहा है, या फिर हम इस तरह से बयान नहीं करते कि उसको जो है 40 दुख है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। ये बातनी इस्तिलाह एक फर्द महसूस करता है, खुशी और गमी के असरात को कबूल करता है। खुशी एक फर्द जो होता है खुश भी होता है, इंसान है, इंसान खुश भी होता है, इंसान मगमूम भी होता है, यानी गम से गम भी होता है इंसान को, इंसान सोता भी है, इंसान जो है हंसता भी है, रोता भी है, हंसता भी है, रोता भी है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं एक सारी जो है, कहने का मतलब ये इसी तरह से अफादा है। अफादे का इजहार हम आदाद शुमार में नहीं कर सकते, जिस तरह से हम जज्बात और एहसासात को आदाद शुमार में पेश नहीं कर सकते, उसी तरह से अफादे को हम आदाद
शुमार में पेश नहीं कर सकते। अफादा क्योंकि एक बातनी और एहसासी इस्तिलाह है, जैसा कि डॉक्टर मार्शल ने यहाँ पर फर्ज किया है कि अफादे की पैमाइश की जा सकती है। अफादे की पैमाइश की जा सकती है। डॉक्टर मार्शल ने इस कानून की वजाहत के लिए फर्ज किया है कि अफादे की पैमाइश आदाद शुमार में की जा सकती है, लेकिन दर हकीकत और एक्चुअल में या रियल में अफादे की पैमाइश आदाद शुमार में नहीं की जा सकती, क्योंकि अफादा एक बातनी इस्तिलाह है, अफादा एक एहसासी इस्तिलाह है। एहसासी इस्तिलाह, इसको आदाद शुमार में पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई आला मौजूद नहीं है जो अफादे की पैमाइश कर सके, ऐसा कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है जो अफादे की आदाद शुमार में पैमाइश कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि ये भी मफरूज़ा जो है डॉक्टर मार्शल का गैर हकीकी है, अफादे की पैमाइश नहीं की जा सकती। उसके बाद जो है नंबर 3 है नाकाबिले तकसीम अशिया। बहुत सारी अशिया, जैसे अशिया के इस्तेमाल से सारिफ को अफादा हासिल होता है। अशिया खिदमात को जब सारिफ इस्तेमाल करता है तो उसकी अफादियत को वो महसूस करता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब आप सेब की इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो सेब से हासिल होने वाले अफादे को आप महसूस करते हो। आप रोटी की इकाइयाँ इस्तेमाल करते हो तो रोटी से हासिल होने वाले अफादियत को आप महसूस करते हो। आप पानी की इकाइयाँ इस्तेमाल करते हो तो पानी से हासिल होने वाली अफादियत को आप महसूस करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी इकाई, बहुत सारी अशिया खिदमात ऐसी होती हैं जो नाकाबिले तकसीम होती हैं। जैसे मफरूज़ा रखा गया है, ऐसी अशिया और खिदमात पर यह कानून जो है काबिले अमल है जो काबिले तकसीम हो, जिसको तकसीम किया जा सके, जिसको मुख्तलिफ हिस्सों में या मुख्तलिफ छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम किया जा सके। ऐसी अशिया और खिदमात पर यह कानून जो है काबिले अमल है। लेकिन बहुत सारी अशिया और खिदमात ऐसी होती हैं जो हम जिंदगी में सिर्फ एक बार खरीदते हैं, जैसे मोटर कार है, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है। हम बार बार इनकी इकाइयाँ नहीं खरीदते, बल्कि एक बार खरीदते हैं, लेकिन वो चीज़ हमको अफादा देती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कानून ऐसा फर्ज करता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है, साइकिल है, हम रोज़ नहीं खरीदते, बल्कि साइकिल की बहुत सारी इकाइयाँ हम नहीं खरीदेंगे, गाड़ी की बहुत सारी इकाइयाँ हम नहीं खरीदेंगे। गाड़ी हमारे लिए अफादियत रखती है, लेकिन गाड़ी की एक गाड़ी चलाने के बाद दूसरी गाड़ी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी अशिया और खिदमात अफादियत रखती है, लेकिन नाकाबिले तकसीम होती है और उन पर यह कानून जो है नाकाबिले अमल है, उन पर यह कानून जो है सही साबित नहीं होता। नाकाबिले तकसीम अशिया पर, जैसे रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज़र है, इसके अलावा फ्रीज़र के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो हम जिंदगी में एक बार खरीदते हैं, जिनको तकसीम नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन पर ये कानून जो है नाकाबिले अमल है। हालांकि वो तमाम अशिया और खिदमात जो है हमारे लिए अफादियत रखती हैं, वो तमाम चीज़ों से हम यूटिलिटी डिराइव करते हैं, अखज़ करते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, ये एक तनकीद थी। उसके बाद ज़र का हाशिया या अफादा मुस्तकिल। डॉक्टर मार्शल ने ऐसा फर्ज किया है कि ज़र का हाशिया या अफादा मुस्तकिल होता है, मुस्तकिल होना चाहिए, क्योंकि ज़र का हाशिया या अफादा जब तब्दील होगा तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, इसको भी हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज़र का हाशिया या अफादा जो है मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ होता है, यानी ज़र का हाशिया या अफादा मुस्तकिल नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जबकि ये कानून फर्ज करता है कि ज़र का हाशिया या अफादा मुस्तकिल होता है, मुस्तकिल होना चाहिए, यानी कायम रहना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ये चेंज होती है, मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं मिसाल के जरिए वाज़ेह करता हूँ कि 1 रुपये का सिक्का एक गरीब के लिए बहुत अहमियत रखता है,
उसके लिए बहुत यूटिलिटी, वो उस 1 रुपये के सिक्के से यूटिलिटी डिराइव कर सकता है। लेकिन एक अमीर अरबपति जिसको कहेंगे, जिसके पास पैसे की रेलपेल है, पैसे का कोई वो नहीं है, तो उसके लिए 1 रुपया जो है कोई अहमियत नहीं रखता, वो उतनी अहमियत नहीं रखता, उतना अफादा नहीं रखता जितना एक गरीब के लिए रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ अफराद के लिए हाशिया ज़र का हाशियाई अफादा मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ अफराद के लिए ज़र का हाशियाई अफादा मुख्तलिफ होता है, यानी ज़र का हाशियाई अफादा कांस्टेंट नहीं होता, ज़र का हाशियाई अफादा जो है कायम नहीं होता, तो ज़र का हाशियाई अफादा जो है मुस्तकिल नहीं होता। उसके बाद और भी नुकात है जो इस कानून पर, और भी बहुत सारी तनकीदें हैं, जैसे कि एक ख्वाहिश, हाशियाई अफादे का कानून जो है एक वक्त में एक ख्वाहिश की तकमील का इजहार करता है, या तकमील को जाहिर करता है, या उसको पेश करता है। जैसे आपको भूख लगी है, भूख लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, रोटी की इकाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, और रोटी की इकाइयाँ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाशिया आपकी भूख खत्म हो जाएगी, यानी आप नुक्ते सैराबी पर पहुंच जाओगे, आपका पेट भर जाएगा, आपकी तबीयत सैराब हो जाएगी। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, एक ख्वाहिश पर, यानी भूख एक ख्वाहिश है, भूखे की ख्वाहिश क्या होगी, रोटी की इकाइयाँ इस्तेमाल करना। जब भूखा रोटी की इकाइयाँ इस्तेमाल करेगा तो उसकी ख्वाहिश की तकमील होगी, यानी भूखे के लिए रोटी में अफादियत मौजूद है, तो ये एक ख्वाहिश है। लेकिन हम देखते हैं कि एक फर्द बैक वक्त जो है बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील करता है, बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील करता है, या एक शय जो है बैक वक्त बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील की सलाहियत रखती है, बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा करती है, बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा करती है। तो ये जो है कानून का मफरूज़ा है, कानून का मफरूज़ा है कि एक ख्वाहिश होना चाहिए जिसको वाहिद ख्वाहिश कहते हैं, वाहिद ख्वाहिश होगी तो ये कानून काबिल अमल है। लेकिन बैक वक्त हम देखते हैं कि एक सालिम जो है बैक वक्त तो बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील करता है, बहुत सारी चीज़ों का से फ़ायदा हासिल करता है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये भी इस कानून का जो मफरूज़ा है जो है ये भी इस कानून की अहम तनकीद है, यानी एतराज़ किया गया इस कानून पर कि एक ख्वाहिश जो है ये एक फ़र्ज़ किया गया है, लेकिन एक्चुअल में दरअसल जो है हकीकत में एक सारी जो है बैक वक्त तो बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील करता है। जैसे आपको भूख लगी है, आपका स्प्राइट पीने की तबीयत हो रही है, तो आप खाने के साथ स्प्राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी 2 ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपकी प्यास भी बुझ रही है, स्प्राइट की भी ख्वाहिश पूरी हो रही है, खाने की भी ख्वाहिश पूरी हो रही है, यानी बैक वक्त में आपकी 3 ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो एक सारी बैक वक्त में एक वक्त में बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा करता है, जबकि ये कानून कहता है कि एक ख्वाहिश की तकमील होती है, एक वक्त में एक ख्वाहिश की तकमील होती है, जो इस कानून के खिलाफ है, इस कानून की अहम तनकीद है। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, इस तरह से घटते हुए हाशियाई अफादे के कानून की तनकीदें या घटते हुए हाशियाई अफादे की खामियां भी कह सकते हैं, एतराज़ात भी कह सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम घटते हुए हाशियाई अफादे की अहम खामियां हैं। पहला जो है गैर हकीकी मफरूज़ात, घटते हुए हाशियाई अफादे के कानून में जितने मफरूज़ात हैं वो गैर हकीकी हैं, हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं है, जैसे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि तमाम इकाइयाँ एक जैसी हों, तमाम इकाइयों का जायका एक जैसा हो, तमाम इकाइयाँ एक जैसी हों। हम खुद बाजार जाते हैं और बाजार से मुख्तलिफ अशिया की खरीद कर लाते हैं। मिसाल के तौर पर आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद आप 1 kg एप्पल खरीदते हो, 1 kg एप्पल खरीदते हो, तो इसमें आपको 6 इकाइयाँ मिलती है एप्पल की 6 इकाइयाँ। पहली एप्पल की इकाई इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल अच्छा होता है, खाने में जायकेदार होता है, जायका हासिल होता है, लेकिन इसमें से कुछ एप्पल जो है आपको फीके लगेंगे, कुछ एप्पल आपको टेस्टी लगेंगे, कुछ एप्पल आपको मीठे लगेंगे, कुछ एप्पल आपके खराब होंगे। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पर कि सारी एक जैसी इकाइयाँ तसलसल हम वज़न, अब कुछ एप्पल जो है हर एप्पल का वज़न एक
दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हालांकि उनका क्वालिटी एक है, म्यार एक है, एक ही दरख्त के एप्पल है, लेकिन उनका म्यार जो है मुख्तलिफ होगा। इसके अलावा सारिफ की माकूलियत है। सारिफ की माकूलियत जो है, सारिफ जो है जैसे सारिफ इंसान होता है, और सारिफ जो है, सारिफ का सलूक और बर्ताव बहुत सारी चीज़ों से तब्दील होता है, सारिफ का सलूक और बर्ताव। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है गमगीन होते हैं, लेकिन अचानक मौसम की तब्दीली से वो गीत गुनगुनाने लगते हैं, उनका मूड कहना चाहिए, उनका जो रवैया जो है बेहतर हो जाता है। इससे पहले उसका रवैया खराब था, लेकिन मौसम की तब्दीली से उसका रवैया, सलूक और बर्ताव बेहतर हो जाता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, इंसानी सलूक और बर्ताव जो है बहुत सारी चीज़ों से मुतासिर होता है। तो ये तमाम मफरूज़ात जो है जितने फ़र्ज़ किए गए हैं, ये तमाम मफरूज़ात जो है इस कानून की सदाकत के लिए फ़र्ज़ किए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में दर हकीकत ये तमाम के तमाम मफरूज़ात हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हकीकत से कहना चाहिए ये गैर हकीकी मफरूज़ात हैं। दूसरा पॉइंट भी आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। बुनियादी पैमाइश, डॉक्टर मार्शल ने इस कानून को फर्ज किया है कि अफादे की पैमाइश की जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा आला, कोई ऐसा इक्विपमेंट मौजूद नहीं है जो अफादियत की पैमाइश कर सके। अफादा क्योंकि एक एहसासी इस्तिलाह है, क्योंकि एक बातनी इस्तिलाह है। तीसरा पॉइंट जो है नाकाबिल तकसीम अशिया। बहुत सारी अशिया खिदमात ऐसी होती हैं जिनको हम तकसीम नहीं कर सकते। जैसे रोटी की इकाइयों को, रोटी की चपाती को मुख्तलिफ इकाइयों में हम तकसीम कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें मुख्तलिफ जो है उनको हम तकसीम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी अशिया खिदमात ऐसी हैं जो हमारे लिए अफादियत रखती हैं, जिनसे हम अफादा हासिल करते हैं, लेकिन वो तमाम अशिया खिदमात जो है, वो तमाम अशिया खिदमात को तकसीम नहीं किया जा सकता। तो ये कानून जो है उन अशिया खिदमात पर नाकाबिल अमल है। इसी तरह से ज़र का आशिया या फ़ायदा, जैसे एक फ़र्द के लिए, एक भूखे के ज़र का आशिया या फ़ायदा कहने का मतलब है मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ होता है। एक गरीब के लिए 100 रुपये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, 100 रुपये से वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील कर सकता है। लेकिन एक रिच पर्सन होता है, अमीर व कबीर फ़र्द होता है या शख्स होता है, उसके लिए 100 रुपया कोई मानी नहीं रखता। जैसे मिसाल हम देखते हैं कि एक गरीब का अगर 100 रुपया खो जाए तो वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन एक अमीर के अगर 100 रुपये खो जाए तो वो बेचैन नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि अफादियत मुख्तलिफ है। 100 रुपये की अफादियत, 100 रुपये में एक गरीब के लिए अफादियत बहुत ज़्यादा है, और 100 रुपये में एक अमीर के लिए अफादियत जो है बहुत कम है। इसलिए अमीर कहना चाहिए अमीर जो है परेशान नहीं होता, गरीब जो है 100 रुपया खोने पर परेशान हो जाता है। तो ज़र का आशय या फ़ायदा मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक फ़कीर का अगर 100 रुपया खो जाए तो वो फ़कीर जो है बहुत परेशान होगा। एक फर्द की रोज़ाना की यौमिया आमदनी अगर 100 रुपये है और वो यौमिया आमदनी 100 रुपया अगर खो जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। लेकिन अंबानी, कहना चाहिए रिलायंस का जो मालिक है, अगर उसके 100 रुपये खो जाए, अगर उसके 20,000 खो जाए तो उसको कोई अहमियत नहीं रखता उसके लिए वो पैसा। लेकिन एक गरीब के लिए, क्योंकि वो गरीब उस 100 रुपये से बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़र का आशय या फ़ायदा मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ होता है, जबकि ये कानून कहता है कि ज़र का आशय या फ़ायदा जो है मुस्तकिल होना चाहिए। इसी तरह से वाहिद ख्वाहिश है, इसको भी हमने बयान किया कि वाहिद ख्वाहिश क्या होती है। तो इस तरह से ये तमाम एतराज़ात हैं, ये तमाम तनकीदें हैं, ये तमाम जो है इस कानून की खामियां हैं। तो ये इस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, घटते हुए आशय अफादे के कानून की अहमियत। घटते हुए आशय अफादे के कानून की अहमियत क्या क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर घटता सारिफ के लिए क्या अहमियत रखता है। उसके बाद जो है फरोशंदे के लिए क्या अहमियत रखता है। फरोशंदा जो होता है यानी ताजिर जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है हुकूमत के लिए क्या अहमियत रखता है, हुकूमत के लिए क्या
अहमियत रखता है ये कानून। इसके बाद जो है और भी ले सकते हैं, बहुत सारे नुकात ले सकते हैं। हुकूमत के लिए अहमियत व अफादियत का हामिल है, तो सिंपली इसको आसान अल्फाज में आप बयान कर सकते हो कि घटते हुए आशियाई अफादे का कानून जो है एक सारिफ के लिए सूदमंद होता है, अहमियत व अफादियत का हामिल होता है। अजीज तुलबा व तलबात, घटते हुए आशियाई अफादे के कानून की अहमियत व अफादियत। अजीज तुलबा व तलबात, घटते हुए आशियाई अफादे के कानून जो अहमियत और अफादियत का हामिल है, क्योंकि बेशतर चीज़ों पर इस कानून का इतलाक होता है, बेशतर अशिया और खिदमात पर इस कानून का इतलाक होता है, बेशतर अशिया और खिदमात पर इस कानून का इतलाक होता है। ये कानून जो है आलमी तौर पर काबिल कबूल है, आलमी तौर पर काबिल कबूल है, यानी आलमी तौर पर इस कानून को कबूल किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, घटते हुए आशियाई अफादे का कानून। क्योंकि घटते हुए आशियाई अफादे के कानून जो है अहमियत व अफादियत का हामिल है। किस तरह से अहमियत व अफादियत का हामिल है? घटते हुए आशियाई अफादे का कानून जो है एक सारिफ के लिए भी अहमियत व अफादियत रखता है, वहीं एक फरोशंदे के लिए, ताजिर के लिए, आजिर के लिए अहमियत व अफादियत रखता है। और मजीद अगर हम देखें तो हुकूमत के लिए भी अहमियत व अफादियत रखता है, अहमियत व अफादियत रखता है। मजीद इसके अंदर और बयान कर सकते हैं कि वजीर मालियात जो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, उसके लिए भी ये अहमियत व अफादियत का हामिल है, घटते हुए आशियाई अफादे का कानून। उसके बाद मुतनाकिस कद्र है, ये मुतनाकिस कद्र है। उसके बाद जो है मांग के कानून की बुनियाद है, यानी घटते हुए आशियाई अफादे का कानून जो है मांग के कानून की बुनियाद फराहम करता है। तो अजीज तुलबा और तालिबा, सबसे पहला पॉइंट लेंगे कि कंज्यूमर के लिए, एक सारिफ के लिए घटते हुए आशियाई अफादे का कानून जो है सूदमंद होता है। एक सारिफ जो होता है क्या करता है? सारिफ का मकसद क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा तशफ़ी हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा, यानी सारिफ का मकसद जो होता है अशिया और खिदमात से मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन डिराइव करना होता है, यूटिलिटी डिराइव करना एक सारिफ का मकसद होता है। तो सारिफ क्या करता है? सारिफ क्या करता है? अशिया और खिदमात खरीदते वक्त तो वो उसकी अफादियत और कीमत के दरमियान मुआवजा करता है। जैसे हम देखते हैं बाजारों के अंदर, जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो बार्गेनिंग करते हैं, यानी सौदेबाजी जिसको कहा जाता है, सौदेबाजी की जाती है। जैसे फरोशंदा बोलता है कि 50 रुपीज पर केजी, सारिफ बोलता है कि 40 रुपीज पर केजी दो। सारिफ क्यों बोलता है? बाद में हम देखते हैं कि 45 रुपीज पर केजी वो खरीद लेता है उसको। तो कहने का मतलब है ये बार्गेनिंग, ये सौदेबाजी क्यों होती है? ये बार्गेनिंग और ये सौदेबाजी इसलिए होती है कि अफादियत जो है, एक फर्द जब अशिया खिदमात को खरीदता है तो उसकी अफादियत और कीमत के दरमियान मुआवजा करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अफादियत, एक बीमार के लिए, एक बीमार है, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लिख कर दे दिया, डॉक्टर ने उसे लिख कर दे दिया, वो मेडिकल पर जाता है, उस इंजेक्शन को खरीदता है। बीमार के लिए उस इंजेक्शन के अंदर, उस मेडिसिन के अंदर बीमार के लिए अफादियत मौजूद है, इसलिए वो उसे खरीद लेता है। लेकिन एक फर्द बीमार नहीं है, एक फर्द सेहतमंद है। अगर मेडिकल वाला वही मेडिसिन उसको, उस 500 रुपये की मेडिसिन जो है उसको 50 रुपये में देगा कि ये इंजेक्शन आप जाकर लगा लो, तो वो बीमार 50 रुपये में उस इंजेक्शन को नहीं खरीदेगा और ना जाकर लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अफादियत जो है, एक फर्द जब अशिया खिदमात खरीदता है, हम बजाते खुद जब अशिया खिदमात खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर अफादियत कितनी है। जैसे हमारे घरों हम सुनते हैं कि अभी कीमत कम होने दो फिर खरीदेंगे, अभी कीमत कम होने दो फिर खरीदेंगे, या
की कीमत जब कम होगी और अफादियत ज़्यादा होगी तो उस वक्त ज़्यादा मिकदार सारिफ खरीदेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, और जब कीमत ज़्यादा होती है, उस शय की अफादियत कम होती है तो लोग उसको कम मिकदार खरीदते हैं। तो यही हाल एक सारिफ का होता है। एक सारिफ के लिए अशिया खिदमात खरीदते वक्त एक सारिफ जो है अफादा और कीमत के दरमियान मुआवजा करता है, क्योंकि सारिफ अक्लमंद होता है, सारिफ दाना होता है, या सारिफ जो है ज़हीन होता है, चालाक होता है। वो शय और अफादियत, शय की कीमत और अफादियत के दरमियान मुआवजा करता है, और जब शय की अफादियत जो है वो उस वक्त तक शय को खरीदता है जब तक शय की अफादियत और शय की कीमत एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब तक खरीदता है। जब उसकी अफादियत जो है, कहने का मतलब है अफादियत कम और कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो उस शय को नहीं खरीदता, बल्कि उसका मुतबादिल तलाश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारिफ के लिए सूदमंद है। क्योंकि सारिफ जो है कीमत और अफादियत के दरमियान मुआवजा करता है और अशिया और खिदमात खरीदता है, इसलिए घटते हुए अशिया या अफादे का कानून जो है एक सारिफ के लिए सूदमंद होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको शिद्दत की प्यास लगी हुई है, दूर दूर तक पानी का नाम निशान नहीं है, पानी का नाम निशान नहीं है, कोई पानी आप फरोख्त करने वाला आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक एक पानी फरोख्त करने वाला आपके सामने नमूदार हो जाता है। और वो एक बोतल जो है, जो 20 रुपीस की पर लीटर की बोतल होती है, वो बेचने वाला उसको 50 रुपीस पर बोतल फरोख्त करता है, तो आप उसे खरीदने पर मजबूर हो जाते हो, क्योंकि उस वक्त पानी की अफादियत आपके लिए ज़्यादा है, शायद कीमत जो है कम है, पानी आपके लिए ज़रूरी है, वो ज़्यादा कीमत से ज़्यादा अफादा रखता है, इसलिए आप उस बोतल को खरीद लेते हो। लेकिन आपको पानी की प्यास नहीं लगी हुई है। कहने का मतलब यह है कि आपको प्यास नहीं लगी हुई है, और ये कहने का मतलब आप जो है पानी पी चुके हो, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकें आपको प्यास नहीं लगी। अब कोई पानी फरोख्त करने वाला आपको 20 रुपए के बोतल 10 रुपए में देता है, तो आप उसे नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका हाशियाई अफादा जो है, हाशियाई अफादा कम है, कीमत का कम पर भी आप उसको नहीं खरीदोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि सारिफ जो होता है, एक सारिफ जो होता है वो क्या करता है, कीमत और अफादे के दरमियान मुआवजा करता है, और कीमत और जब अफादियत ज़्यादा होती है, कीमत कम होती है, तो उस शय को खरीदता है, और जिस शय के अंदर अफादियत कम होती है, कीमत ज़्यादा होती है, तो उस शय को नहीं खरीदता। तो अजीज तुलबा और तालिबात, घटते हुए अशिया या अफादे का कानून जो है एक सारिफ के लिए, एक कंज्यूमर के लिए सूदमंद होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है फरोशंदा। एक फरोशंदा होता है, फरोशंदा कहो, फरोख्त करने वाला कहो, ताजिर कहो, या फिर आजिर कहो। एक आजिर जो होता है अशिया खिदमात, ताजिर जो होता है, फरोशंदा जो होता है अशिया खिदमात की कीमत का तयन करने में घटते हुए अशिया या अफादे का कानून जो है सूदमंद होता है। फरोशंदा क्या करता है, ताजिर क्या करता है, जिन अशिया खिदमात की अफादियत ज़्यादा होती है उनकी कीमत ज़्यादा मुतय्यन करता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करता है। क्योंकि एक ताजिर और एक फरोशंदे का मकसद जो होता है, जिस तरह से सारिफ का मकसद मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन होता है, उसी तरह से एक फरोशंदे, एक फरोख्त करने वाले, एक ताजिर, एक आजिर या एक पैदाकार का जो मकसद होता है, मकसद क्या होता है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना मकसद होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने में ये घटते हुए अशिया या अफादे का कानून जो है एक फरोशंदे के लिए भी सूदमंद है, एक आजिर के लिए भी सूदमंद है, एक पैदाकार के लिए भी सूदमंद है, एक ताजिर के लिए भी सूदमंद है। क्योंकि आजिरीन क्या करते हैं,
افادیت جب کسی چیز کی افادیت بڑھ جاتی ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں۔ جیسے برسات کے دنوں میں رین کوٹ، امبریلا اور ان تمام چیزوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے، تو ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے، قیمت زیادہ پر بھی لوگ اسے خریدتے ہیں۔ تو اس طرح سے فروشندہ، بیچنے والا، فروخت کرنے والا زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا، تو ایک تاجر کے لیے یہ سود مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہو بہت ساری چیزیں، لیکن جب برسات کا موسم چلا جاتا ہے تو امبریلا، رین کوٹ، برساتی جوتے چپل میں وہ افادیت باقی نہیں رہتی، کم قیمت پر بھی لوگ کم خریدتے ہیں، کم قیمت پر بھی کم خریدتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ایک فروشندے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک فروشندے کے لیے گھٹتے ہوئے اشیاء یا افادے کا قانون جو ہے سود مند ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے۔ کیوں کارآمد ہوتا ہے؟ شے کی قیمت کا تعین کرنے میں۔ جیسے ایک پیداکار ہے، پروڈیوسر جس کو ہم کہتے ہیں، کسان ان اشیاء و خدمات کی پیداوار کرتا ہے جن کی بازار میں مانگ زیادہ ہوتی ہے، جو بازار میں زیادہ قیمت پر فروخت ہوگی، جس میں اسے زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ جیسے ایک کسان ہے سبزی ترکاریوں کی کاشت کرتا ہے، لیکن سبزی ترکاریوں میں اس کو اتنا منافع نہیں ملتا، تو کسان کیا کرتا ہے؟ مختلف دوسری چیز کی پیداوار کرتا ہے، دوسری فصل کی پیداوار کرتا ہے، دوسری چیز کی پیداوار کرتا ہے، دالیں اور مختلف چیزوں کی پیداوار کرے گا، کیونکہ اس میں زیادہ منافع ہے۔ تو اسی طرح سے جن اشیاء و خدمات میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے، آجر ان اشیاء و خدمات کی پیداوار کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے آجر کو معلوم پڑتا ہے؟ افادیت سے معلوم پڑتا ہے کہ جن چیزوں کی افادیت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کی پیداوار زیادہ کرتا ہے، تاکہ آجر زیادہ سے زیادہ، پروڈیوسر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ جیسے مختلف جو کہنا چاہیے کمپنیز ہوتی ہے، وہ کمپنیز جو ہے سیزنل ہوتی ہے، یعنی سیزن کے وقت جب ان کی افادیت زیادہ ہوتی ہے تو ان کا پروڈکشن زیادہ کرتی ہے، اور جب ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے تو ان کا پروڈکشن کم کر دیتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آجر، ایک پیداکار کے لیے بھی یہ سود مند ہے یہ قانون، گھٹتے ہوئے اشیاء یا افادے کا قانون۔ اسی طرح سے حکومت کے لیے بھی، نمبر 3 پوائنٹ ہمارا، حکومت کے لیے بھی یہ قانون جو ہے سود مند ہوتا ہے، یہ قانون جو ہے کارآمد ہوتا ہے۔ اب حکومت کا کیا؟ حکومت ان اشیاء و خدمات پر حکومت پالیسی تشکیل کرتی ہے۔ آپ کو حکومت پالیسیز فریم کرتی ہے حکومت، اور ان پالیسیز کو فریم کرنے میں وہ کیا کرتی ہے؟ گھٹتے ہوئے اشیاء یا افادے کے قانون کا استعمال کرتی ہے۔ حکومت جو ہے گھٹتے ہوئے اشیاء یا افادے کے قانون کا استعمال کرتی ہے، جن اشیاء و خدمات کی افادیت زیادہ ہوتی ہے، جن اشیاء و خدمات کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، ان اشیاء و خدمات پر زیادہ ٹیکس عائد کرتی ہے، تاکہ حکومت زیادہ سے زیادہ محصول حاصل کر سکے، حکومت زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل کر سکے، کیونکہ ٹیکس جو ہے حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے، تو حکومت ایسی اشیاء و خدمات پر کیا کرتی ہے؟ ٹیکس زیادہ عائد کرتی ہے، جن اشیاء و خدمات کی افادیت زیادہ ہوتی ہے، جن اشیاء و خدمات میں افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری اشیاء و خدمات ہوتی ہیں، اور عدد کی بنیاد پر اشیاء و خدمات کی مانگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ضروری اشیاء کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، بجلی، گھر، تعلیم وغیرہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ لیکن ایسی اشیاء عدد کی بنیاد پر مانگی جانے والی اشیاء جو ہوتی ہے، عدد کی بنیاد پر، جیسے شراب کے اندر ایک شرابی کے لیے بہت افادیت ہوتی ہے۔ شرابی کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی دن ہو، شرابی شراب پیتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے افادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے نشہ آور اشیاء و خدمات ہیں، ان پر افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ صارفین جو نشہ آور اشیاء و خدمات استعمال کرتے ہیں، نشہ آور اشیاء و خدمات استعمال کرنے والے صارفین کے لیے نشہ آور اشیاء و خدمات میں افادیت زیادہ ہوتی ہے۔
जैसे स्मोकिंग, सिगारेट स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है स्मोकर जो है स्मोक करता ही है। तो कहने का मतलब ये सरकार क्या करती है, हुकूमत क्या करती है, ऐसी अशिया खिदमात पर टैक्स की शरह ज़्यादा आयद करती है, ज़्यादा आयद करती है, जिसकी वजह से सरकार को, हुकूमत को ज़्यादा महसूल हासिल होता है, ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। तो हुकूमत अशिया खिदमात, ऐसी अशिया खिदमात पर ज़्यादा टैक्स आयद करती है या ज़्यादा टैक्स लगाती है, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ज़्यादा टैक्स नाफिज करती है। तो जिन अशिया खिदमात में लोगों के लिए अफादियत ज़्यादा होती है, जिन अशिया खिदमात में लोगों के लिए अफादियत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन अशिया खिदमात में अफादियत ज़्यादा होगी, सारी उन अशिया खिदमात को खरीदेगा, और सारी जब उन अशिया खिदमात को खरीदेगा तो उसमें टैक्स भी अदा करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हुकूमत टैक्स की पॉलिसी तश्कील देने में, हुकूमत पॉलिसीज़ को तश्कील देने में घटते हुए अशिया अफादे का इस्तेमाल करती है, अशिया और खिदमात की अफादियत का इस्तेमाल करती है, अफादियत की मालूमात हासिल करती है। तो ये कानून जो है हुकूमत के लिए भी सूदमंद होता है, ख़ास तौर से वज़ीर मालियात जो होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, उसके लिए भी ये कानून जो है सूदमंद है, कारआमद है। उसके बाद मुतनाकिस कद्र जिसको कहें, मुखालिफ कद्र जिसको कहें, मुखालिफ कद्र से मुराद मुखालिफ कद्र, जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए वाज़ेह करता हूँ। इस एक होता है इस्तेमाल की कद्र, एक होता है शय की इस्तेमाल की कद्र होता है, एक होता है उसके अफादे की कद्र होती है। मुखालिफ बुनियाद जिसको कहा जाता है, मुखालिफ बुनियाद, जैसे पानी के इस्तेमाल की कद्र ज़्यादा है। पानी जो है हर कोई इस्तेमाल करता है, पानी के इस्तेमाल की हर कोई इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब यह है, जैसे दो चीज़ों से मैं वाज़ेह करता हूँ इसको, कि पहली चीज़ जो है पानी है, दूसरा जो है हीरा है, पानी और हीरा। पानी के इस्तेमाल की कद्र क्या है, ज़्यादा है। हीरे के इस्तेमाल की कद्र, बोलो, हीरे के इस्तेमाल की कद्र क्या है? अजीज तुल्बा, सिंपली हम समझ सकते हैं कि पानी बआसानी दस्तयाब है, इसलिए उसके इस्तेमाल की कद्र क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये पानी हर किसी को अफादा देता है, पानी से हर कोई अफादा हासिल करता है। जैसे आपको कपड़े धोना है, वॉशिंग करना है, पीना है, इसके अलावा साफ़ सफाई करना है, इसके अलावा आपको बहुत सा हर काम के अंदर पानी का इस्तेमाल होता है। पानी के इस्तेमाल की कद्र कम है, लेकिन अफादियत ज़्यादा है। हीरे के इस्तेमाल की कद्र क्या है, क्या बोलेंगे हम? हीरे के इस्तेमाल की कद्र, हीरा जो है कीमती होता है, हीरा जो है अफादा नहीं देगा, हर एक की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, इसमें अफादा कम है। लेकिन इस्तेमाल की कद्र कहना चाहिए, इस्तेमाल की कद्र जो है, जैसे पानी के इस्तेमाल की कद्र जो है क्या है, पानी बआसानी दस्तयाब होता है, पानी बआसानी दस्तयाब होता है, लेकिन अफादा बहुत देता है। पानी इस्तेमाल की कद्र जो है कम है, लेकिन अफादियत ज़्यादा है। यहाँ पर इस्तेमाल की कद्र ज़्यादा है, अफादियत कम है हीरे के अंदर। तो ये जो है मुतनाकिस कद्र को मुतय्यन करने में भी ये कानून जो है अहम किरदार अदा करता है। तो मुतनाकिस कद्र इस तरह से आप इसको बयान कर सकते हैं, मकानी बुनियाद फराहम करता है। उसके बाद मांग के कानून की बुनियाद फराहम करता है। तो मांग के कानून की बुनियाद किस तरह से फराहम करता है, अफादियत की बुनियाद पर हम मांग करते हैं। मांग का कानून क्या है, मांग का कानून जब कीमत ज़्यादा होती है तो मांग सुकड़ती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग फैलती है। कीमत ज़्यादा पर यानी डिमांड जिसको हम कहेंगे, प्राइस जब इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस जब डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होता है। क्यों ऐसा होता है?
ये मांग का कानून है। इस मांग के कानून की बुनियाद जो है घटते हुए आशय या अफादियत जो है इस मांग के कानून की बुनियाद है, क्योंकि जब कीमत ज़्यादा होती है तो उस शय की अफादियत से ज़्यादा कीमत होती है, जिसके नतीजे में मांग कम होती है। और जब कीमत कम होती है, शय की अफादियत के मुकाबले में कीमत क्या होती है, कम होती है, तो मांग ज़्यादा होती है। उम्मूमन सस्ती चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदते हैं। कहने का मतलब यह है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि उम्मूमन लोग आम तौर पर लोग ऐसी अशिया और खिदमत को ज़्यादा मिक़दार में खरीदते हैं जिनकी कीमत कम हो, जिनकी अफादियत ज़्यादा हो। अफादियत ज़्यादा हो तो कीमत कम पर अफादा जब ज़्यादा होगा तो उसकी मांग ज़्यादा होगी, इसीलिए कम कीमत पर मांग ज़्यादा होती है। तो घटते हुए आशिया या अफादे का कानून मांग के कानून को बुनियाद फराहम करता है। इस बुनियाद पर घटते हुए आशिया या अफादे का कानून जो है अहमियत और अफादियत का हामिल है। तो अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, ये तमाम नुकात जो है ये घटते हुए आशिया या अफादे के कानून की अहमियत में बयान कर सकते हैं आप। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, घटते हुए आशिया या अफादे के कानून की अहमियत दर्ज झैल है। पहला सारिफ के लिए सूदमंद है, दूसरा फरोशंदों के लिए कारामद है, हुकूमत के लिए सूद अहमियत और अफादियत का हामिल है, और मुतनाक़िस कद्र मांग के कानून को बुनियाद फराहम करता है। तो इस तरह से हम इन तमाम नुकात को हम वाज़ेह कर सकते हैं। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।